आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्हें दूसरा बुद्ध कहा जाता है, गुरु पद्मसंभव। 8वीं शताब्दी में जन्मे पद्मसंभव ने वज्रयान बौद्ध धर्म की नींव रखी है और तिब्बत तथा हिमालयन क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। वे ओडिशा यानी कि प्राचीन उद्यान वर्तमान में संबलपुर से गहराई से जुड़े थे, जहां से उनकी शिक्षाएं निकली। हाल ही में जनवरी 2026 में ओडिशा के उदयगिरी में आयोजित दूसरा गुरु पद्मसंभव बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसने उनकी विरासत को वैश्विक मंच पर जीवंत किया। ये सम्मेलन न केवल उनकी शिक्षाओं का उत्सव था, बल्कि भारत की बौद्ध धरोहर को संरक्षित करने का एक प्रयास भी। Guru Padmasambhava is the second Buddha, and this particular place of Udagiri is very important because they say that he spent much time here and he practiced here and he taught here. There were many Mahasiddhas from this area of Udagiri, Ratnagiri, and Lalitgiri. And so this program here is to remember the life and legacy of Guru Padmasambhava. He is very important for the Nyingma tradition, the early Buddhist tradition in Tibet, and he came from here. We are finding out more about that through academic scholarship. But this program was 6 days, starting from the 11th through the 16th, and today we're here at the museum. The government of Odisha, through the Ministry of Tourism and Culture, were so kind to allow for the relics to be displayed. And so many people, I think over 1,000 of us, have come to pay respect, and it's done so beautifully. This is a very special place. There's something very sacred about the land, about the ancient statues and stupas. And so when you come here to pray collectively, it's a very amazing feeling. And to come united in the different traditions of Theravada and also Vajrayana, it shows some sense of harmony, some sense of collective teachings of the Buddha. And so that's what we're here to do, is to support in any way the teachings of the Buddha and to learn from each other, to spend time with each other. And it's just been amazing, very successful. Next year we will do it again, the third Guru Padmasambhava ceremony. Next year we'll have 3 days of Vipassana and Shamatha practice, and all of us will follow that for the first 3 days, and then 5 days we will have in the chanting of Guru Padmasambhava. So it's going to be 8 days next year, and the dates have been set for December 28th for 8 days. And anyone is welcome. You just have to get to Bhubaneswar. From Bhubaneswar, we should have transportation to come to Diamond Triangle. But food will be given, the text will be given, simple accommodation just in like bed and blanket. But this is not so important. It's important to come together and to pray and to dedicate the merit to India, to motherland India. Let the Dharma grow, come back to these holy places, and to have the spiritual energy of the practitioners come back. So thank you to all the Indian officials from the Ministry of Culture, Tourism, Odia language, district collector, MLA, and the people of Odisha here in Udagiri and Ratnagiri and Lalitgiri to being such great hosts. So we've had a wonderful time and would encourage you to come. यहाँ पद्मसंभव के स्टैच्यूज बनाएंगे, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सेंटर होगा, टूरिज्म और कल्चर की
सहमति से गवर्नमेंट लैंड पे हमने डीपीआर बना चुके हैं। अगले साल जब ये सम्मेलनी फिर होगा तभी हम लोगों को नज़रिया लगेगी कि कितना केव्स में ये बात थी जिसको टूरिज़्म और एएसआई दोनों मिलके इतने दिन तक ढूंढ रहे थे, उसको लोगों को पास लाएंगे तो इसके वजह से ही हमारी इस एरिया में एक अच्छा ग्लोबल अट्रैक्शन बनेगी, ये लाइफलाइन बनेगी लोगों के लिए, लिवलीहुड की माने चेंजेस आएगी। मुझे लगती है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो प्रयास है ये पद्म संभव 2 की जो आज सम्मेलनी है उनका आगे ले जाएगी। पद्म संभव की बर्थ प्लेस उड़ीसा है और यहाँ पे जो जिरांग में भी जो मॉन्क्स है उनका भी बर्थ उड़ीसा में हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बुद्धिज़्म का एक सेंटर प्लेस उड़ीसा था, तो वो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए टूरिज़्म पूरा तैयार है, डीपीआर के साथ है, अप्रूवल हो गई है। ये एक डिज़ाइन होता है, लेकिन एक्सपांसन के लिए भी हम लोग तैयार है जितना संभव हो पाएगा। मैं देख जाजपुरी को लोग खनी के लेते जानते हैं, लेकिन आगे जब जाजपुर को जानेंगे यहाँ उदयगिरी बुद्धिस्ट के नाते जानेंगे। हम एएसआई से भी बात हुई है इस बारे में, हर एक टाइम का खनन होती है। रियली इस जगह पे लोग जहाँ पे रहते हैं वो ही ऐसा ही है। लोगों का पीछे की कुएं में भी बहुत अच्छे चीज़ निकलते हैं, यहाँ पौंड में भी निकलती है। तो गांव के लोगों के साथ ये लेख जैसे समझ लीजिए कि उन लोग भी उनका पूर्व पुरुष ही इसको संभाल के रखे हैं, इसलिए आज हम देखने आए हैं। सबको ही जानते हैं कि गुरु पद्मा संभव जो है वो गुरु रिनपोशे हैं और उनको सेकंड बुद्धा भी बोलते हैं, तो द्वितीय बुद्ध जो है। लेकिन आप अगर देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में इतना ज्ञान है सबको, कहाँ पर आए, कहाँ उनका जन्म हुआ। मैं तो नेपाल भी गई थी, माया देवी टेम्पल में वो लोग पूरा एग्जैक्ट पॉइंट भी डिमार्केट किए हैं, बुद्धा वाज बॉर्न हियर करके। इतना बड़ा टेम्पल है, उनको पता है उधर ही बॉर्न हुए थे। एक कोने में लेफ्ट साइड में एक छोटे से कोने में इधर जन्म हुआ था। लेकिन पद्मा संभव को अभी अगर हम बोल रहे हैं ओडियाना, जो उडियाना गुरु उनको बोलते हैं, उडियाना इज़ ओडिशा अगर हम बोलते हैं, सब कोई बोलेंगे नहीं वो उडियाना स्वाट वैली पाकिस्तान में है, क्योंकि फॉरेन रिसर्चर्स वो लिखकर वो चल बसे हैं। जो बुक्स हैं, रिसर्च पेपर है, सब पाकिस्तान करके पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उनका तो जन्म इधर हुआ था। और यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिज़्म के साथ कल्चर ट्रेडिशन सब बहुत समान है। जैसे हमारा रथ यात्रा यहाँ पर जो होता है वो बुद्धिज़्म में भी रथ यात्रा होता है दूसरे जगहों में। तो हमको इसके बारे में और प्रचार प्रसार करना है। तो हमारे प्रबीर कुमार पटनायक जी जो हैं, उन्होंने 14 साल रिसर्च करके बुक लिखा है, उडियाना गुरु पद्मा संभव द सेकेंड बुद्धा। ये आपको मिल जाएगा, अमेज़न ऑनलाइन में मिल जाएगा। बिकॉज इसके बारे में किसी ने रिसर्च करके इतना कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं निकाला था, अभी तक लोगों को पता नहीं था। उन्होंने बहुत स्टडी करके इसके बारे में लिखा है, तो अब और लोगों को जानकारी होगा। हमने कनेक्ट भी किया है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, हमारे मोदी जी हैं, उनको भी भेजा है, हमारे मुर्मू मैडम प्रेसिडेंट, उनको भी भेजा है कि इसके बारे में और चर्चा होना चाहिए। जितने सारे इवेंट्स होते हैं उधर ये डिस्कशन होना चाहिए। और यही इसी क्षेत्र में हम जहाँ पर खड़े हैं, ये पावन धरती पर, उनका ओडिशा जो उडियाना है, संभला करके राजा इंद्रभूति उनके पिताजी ने उनको गोद लिया था। वो मिले थे एक लोटस पे, इसलिए उनका नाम पद्मा संभव रखा गया। फिर उसके बाद वो सीखे उधर, वो अभी जो हीराकुद डैम है, हीरा, वहाँ पर डायमंड्स बहुत फेमस है। 2nd सेंचुरी बीसी में टोलेमी ने भी इसके बारे में 2nd सेंचुरी में लिखा है। टोलेमी ओडिशा के नाम में, अभी जो नया स्पेलिंग है ODISHA, दिशा है ओडिशा में, तो ये दिशा फॉर गुरु पद्मा संभव इधर ही है। यह सम्मेलन लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल
यानी LBDFI द्वारा आयोजित किया गया, जो कैलिफोर्निया आधारित संगठन है और भारत में बौद्ध शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत है। सहयोगी संगठन थे ओडिशा पर्यटन विभाग, उड़िया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तथा जाजपुर जिला प्रशासन। सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम 11 से 16 जनवरी 2026 तक चला, जिसमें मुख्य कॉन्फ्रेंस 14 एवं 15 जनवरी को थी। स्थान था उदयगिरी, ओडिशा का डायमंड ट्रायंगल। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के प्राचीन बौद्ध स्थल। यहां लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल हुए, जो 13 देशों से आए थे। इनमें भिक्षु, लामा, खेम्पो, रिनपोचे, धर्म अभ्यासी, विद्वान, इतिहासकार, शोधकर्ता और बौद्ध शिक्षक, जो महायान, थेरवाद और वज्रयान परंपराओं से थे। It's introduced the teachings into Tibet. This is the Nyingma tradition, and so there's very vast teachings of the Nyingma tradition, hundreds and hundreds of texts, and I'm not a scholar, so I can't speak to that. But I think for me, if you I'm just a household practitioner, but how do I feel? I feel a sense of harmony. You know, when you think about all of these different people coming together, sometimes you feel, do you feel irritated or frustrated or any of those feelings? None. It's more of a feeling of whole, united, and a feeling of just goodness. And I think that's the blessing. Guru Padmasambhava's blessings, the great practitioners' blessings, and the land here blessings. So, but you should check and go through what did the Guru Rinpoche teach, because he came from India. So people from India should study and discover what did he teach. Guru Rinpoche's teachings are really for householders too. And my father was one of the first Nyingma teachers to come to the West. He brought the Vajraguru mantra to the West, and so he first introduced that mantra, Om Vajraguru Pema Siddhi Hom. And so you can chant that, but in our daily life, I think things that we need to just look at is how do we practice with compassion, with loving kindness with each other? How do we not be irritated internally and to be stress-free? A good feeling, maybe that we can say as simple words, is just a good feeling, united, not disturbed with your emotions, but more at peace. So try and practice. I mean, the basic teachings are we need to understand ourselves. Our external world is always there, changing all the time. The circumstances are always changing, up and down. But if we can develop an inner practice so that we can stabilize the mind and our reactions to things, and then we are developing a certain capacity in our spiritual life, and that's cultivating your inner being, your inner qualities maybe. So whatever disturbances you may have, if you can check yourself, are you disturbed? Are you feeling stressed? Are you feeling, disturbed in some way? Then maybe come to the practice and see how you can slow down and understand why is the mind reacting or responding to those situations. You have to get closer to yourself. And once you develop a kind of peaceful platform, then whether it's good or bad, you kind of accept, because you have a core place in yourself that's stable.
I am just learning from the research of where Guru Padmasambhava was born. I've heard from scholars that he's at Sambalapur. He was born at Sambalapur, and there was a King Indrabhuti there. But all of this has to come up in research because there's so many different stories of where he could have been born, and even from the lotus, So human form versus lotus. So there's many ways to interpret his birth. So King Ashoka's place in Dhauli is very important, especially at this time. I want to also say that Guru Rinpoche's teachings are really powerful to transform obstacles into opportunities to transform, like being able to change difficult situation into something that's not so difficult. And right now in the world, we can see with our news that there's a lot of tensions, heightened tensions. And so how can we bring a little bit more calm? First, we have to start with ourselves, and then if we become a good example, then people say, oh, what does she or what does he have that's different than from myself? And that has to do with your spiritual life. So King Ashoka actually was a living example of a king who was in the battlefield and had a lot of, aggression as a leader. But he saw one monk and wondered, how is this being so peaceful? And then came to know about the Buddha's teaching. So this is a great message for the world, that there are leaders in the world today that can turn to more peaceful means. And that's what I wish India to really spread, is that they have the spiritual power. That message is more relevant than ever. What's happening in Iran, what's happening in the world, it's very heightened tension. And when you turn the news, you don't know, is something disastrous going to happen? And I pray not. I pray from the bottom of my heart that if there's any merit that we would have accumulated from doing this program, that we try to pacify and become a little bit more, bring that goodness into the world. It's invisible goodness, but if we can do something to change the matter of our own history, to changing it to a place of peace, then India maybe has a great chance to be a great leader. हर बार जब भी त्रिपिटक चैंटिंग होती है तो त्रिपिटक चैंटिंग में काफ़ी सारे लोग अपने अपनी तरीके से दान देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में ये एक माता जी यहाँ पर है, ये थाईलैंड से आई हुई है और थाई फूड जब जब इस देश में, हमारे भारत देश में जब जब त्रिपिटक चैंटिंग होती रही है तो थाई फूड का पूरा नियोजन ये करती है। तो इन्हें उस विषय में प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्हें किस तरह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये सारा अरेंजमेंट करने में क्या तकलीफ़ें होती है, आइए इनसे जाते हैं। सो मैम, विल यू प्लीज़ टेल अबाउट दिस।เริ่มทำอาหารไทยที่มาช่วยงานสาธยายพระไตรปิฎกเมื่อปี 2550 ค่ะคุณวังโมเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็ต่อมาก็ได้แยกเป็นโรงทานประเทศไทยแล้วก็ที่บริษัทของตัวเองเนี่ยค่ะได้ออกค่าใช้จ่ายเองมาเมื่อปี 2558 ค่ะเป็นโรงทานประเทศไทยโดยการสนับสนุนของบริษัทอารีแลนด์กรุ๊ปคุณอารีมาเซ่ตั้งบอสใหญ่แล้วก็คุณบัวบริษัทของตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ออกเงินมาโดยตัวเองค่ะ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैम ने जो थाई भाषा में कहा उसका अनुवादन हमारे साथ में भंते जी इसका अनुवादन करेंगे प्लीज। मैं बुआ, her name is Bua Phuen Nari from Thailand. In the first in the first Tipitaka chanting, international Tipitaka chanting in Bodh Gaya, she worked to join to Wangmo Dixie. In the first time, on that time, Wangmo invite Thai group come to join, and after she worked in Thai for Thai food, Thai menu, and people in Bodh Gaya like a pad Thai or som tam like this. And after that, about next 8 years later, she sponsored by Arima Group,
people from Thailand offered this food, and after that she support and she worked in Bodh Gaya many years, for 20 years. And Guru Pathama Sambhava this year, Thai monks, 18 Thai monks come to join. We invite her to come to join us and to be Thai chef and cook Thai food. It's not only Thai monks, for Lama, for Rinpoche, for Indian people in Oriya too. सम्मेलन का उद्देश्य था गुरु पद्म संभव की विरासत का अन्वेषण, ओडिशा की बौद्ध धरोहर का संरक्षण और वैश्विक शांति के लिए प्रार्थनाएं। ये LBDFI के संस्थापक तारथांग तुलकुर रिनपोचे की दृष्टि से प्रेरित था, जिनके पुत्री डॉक्टर वांगमो डिक्सी और डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी ने इस आयोजन का नेतृत्व किया। जिग्मे रिनपोचे ने अध्यक्षता की, जबकि सोनम ताशीर रिनपोचे ने प्रार्थना गतिविधियों का संचालन किया। We know about Guru Padmasambhava mainly from Tibetan history. So the Tibetans record him as coming into Tibet from Nepal and then bringing with him a whole tantric revolution in Buddhism. So he's regarded by the Tibetans as the second Buddha. And then he spends a long time in Tibet, then he leaves. And what we find very interesting is the possibility, I mean, obviously Padmasambhava was Indian because he came into Tibet from India, but we want to find his Indian history. And the significance of Padmasambhava is that he was one of the very first to bring inner Tantra to India. So, you know, there's the original teachings of the Buddha, then there's the so-called Mahayana, and then there's Tantra. And Padmasambhava was one of the very early, maybe the beginning of Indian Tantra. So he has an extraordinarily important role to play in understanding the whole breadth of Buddhism. And Orissa is a state where Buddhism began because it's very likely the two merchants who gave Buddha the honey on the 7th week after the Enlightenment came from Orissa. So right at the very beginning, Orissa. Then Ashoka laid his arms down in Orissa. Then this place here is dated from the 2nd century BCE. And then Udagiri and places like that go all the way up to the 14th, 15th, 16th century. So the whole time, India was Buddhist, Orissa was Buddhist. Buddhism teaches purity of mind. So in the Dhammapada, Buddha says, your thoughts follow you like a shadow. Now, that's a very deep statement. Your thoughts follow you like a shadow. So as Indian philosophy developed, this understanding developed, we've already conceived. So we're actually seeing our own conception. And so we're going round and round and round in circles because we're not really seeing the world, we're seeing our world. And this is why we get trapped. Now, that's the deeper view of your thoughts follow you like a shadow. That's just the deeper view. But there's an even deeper view because you can enter your own perception and become free within it. And that capacity is called Tantra. And Padmasambhava has another name, Nangsid Zilnan, which means the master of appearance and existence, which means he could manifest in appearance and show existence, which is why he's often shown very dynamically, because he was very dynamic. And that's the difference, if you like. Now, really, the Vajrayana or Tantra has the same view as the Mahayana, and the Mahayana is just a development of the original teachings. So they're not really different, but Padmasambhava represents a master after 1,500 years of Buddhist thought and development. So it's the latest development. And of course, the Tibetans then took that forward
in their own tradition for another 1,000 years. It's really, I mean, it's an incredible thing, Buddhism. This place, well, actually, Lalitgiri and Udagiri and Ratnagiri have the most exquisite Buddhist remains. And all we have to do is to remind Indian people that this is their culture. It's not someone else's culture, it's Indian culture. And then Indian people become interested, and then the exquisite art and the beautiful expression is what ignites the interest. So what we do is we bring people and we encourage events to happen, and then the Indian people become interested. So it's like that. So Buddhism is definitely where Ashoka laid his arms down at Dhauli, because there's an inscription there. It may be the birthplace of Padmasambhava. That's what we're researching now. There is a statue in Udagiri with Padmasambhava's name on it. So evidence like that will enable you to say, yes, it's definitely the birthplace of Padmasambhava. That's what we're doing. So we're actually doing a prayer ceremony and an academic conference together. And so we're in our first year of the academic conference, and we're going to run that for a number of years, and we're going to build more and more and more evidence that this is the case. I believe it's the birthplace, but on the other hand, I can't prove it yet. But I think in the end we will prove it. And that will be wonderful for India, because Padmasambhava is a great master. He is worshipped not only all across the Himalayas, but all across Southeast Asia as well. So this is a hugely important thing to be able to locate him in India. लास्ट ईयर के बाद ये दूसरी बार हो रहा है लाइट ऑफ बुद्ध फाउंडेशन और उड़ीसा डिपार्टमेंट कल्चर और टूरिज्म को मिला के ये सेकंड लाइट ऑफ बुद्ध फाउंडेशन के साथ बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो रहा है। ये दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ बुद्धिज्म व्हिच वाज हियर, द ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी एटसेट्रा, दे एक्चुअली आर very ancient heritage place. When people come here and have their worship, obviously our place also get an importance. हम लोग चाहते हैं कि लोग आए, इस जगह का जो भी है उसको देखें, उसका आनंद लें. Odisha is the wonderful place. You will find every religion mingling with the culture here. हम लोग के साथ यहाँ के वातावरण के साथ सारे जितना धर्म है, अभी पुराने ज़माने में सब मिंगल करके यहाँ पे रहे हुए थे. तो उसका जो भी हेरिटेज साइट है, उसको अगर रिवाइव हो सकता है, टूरिज्म पर्सपेक्ट से उसको ज़्यादा अगर बढ़ावा मिल सकता है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज़ विलिंग टू डू एवरीथिंग. जो भी ज़रूरत होगा उसको करने के लिए तैयार है. इस बार का जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो रहा है उसी के मद्देनज़र हो रहा है. तो उड़ीसा जो है कलिंग के नाम से जाना जाता है. कलिंग से जो है बहुत सारा कनेक्शन है भगवान बुद्ध के जीवनी से लेके अब तक, अशोका का समय से ही, तपस्वी भल्लिका से लेके, फिर उसके बाद दंतपुरी से लेके कलिंग का बहुत सारा जगह में उनका जिक्र होता है त्रिपिटक पाली में. तो कलिंग का एक बुद्ध इतिहास में जो है बुद्धिस्ट हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है. स्पेशली कलिंग वॉर के बाद जब अशोका की जो परिवर्तन हुआ, धर्माशोक बने और उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया. खास करके उड़ीसा में बहुत सारा विहार बनवाए वो उनकी धर्म परिवर्तन के बाद. तो उसमें हम देखते हैं कि धौलगिरी, जहाँ पे उनकी कलिंग वार हुआ था, और उसके बाद उन्होंने शांति का खोज में बौद्ध धर्म को पाए और उनमें बुद्धिस्ट बने. फिर उसके बाद उड़ीसा में उन्होंने अनेक विहार और स्तूपा बनाए. उसमें से एक तीनों जगह जहाँ हम हैं यहाँ पे, रत्नगिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी, ये तीनों को कहते हैं त्रिरत्न की तरह जो है ये डायमंड ट्रायंगल कहते हैं. तो उसमें ही हम लोग यहीं पे सारे देश विदेश से हमारे संघ बंधुगण आए हुए हैं. भिक्षु संघ पूज्य आचार्य नामफोन के साथ बड़े बंते डॉक्टर खाउचुन सुखमाविद बंते एंड सारे संघ जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, साथ साथ तिब्बत के लोग उपस्थित हुए हैं. तो इसमें उदयगिरी जो है, इसमें से पुराने में से है ललितगिरी जो है 2nd सेंचुरी से ही उन्होंने बुद्धिस्ट सेंटर्स था. एक बड़ा बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, मेडिटेशन सेंटर्स, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था ललितगिरी. तो वहाँ फर्स्ट मोनास्ट्रीज, उसमें हम देखते हैं अशोक का स्तूप पाया जाता है, धातु स्तूप पाया जाता है, अनेक विहारों थे. तो वहाँ बंते लोग रहते थे
पढ़ते थे, अपना अभ्यास करते हैं। उस ज़माने का जो नालंदा कहते हैं कि ईस्टर्न जोन में ये नालंदा की तरह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था यहाँ पे। उस तरह से रत्नगिरी, जहाँ हम देखते हैं रत्नगिरी महाविहार है, और वो भी एक भिक्षु संघ, आर्य भिक्षु संघ को हम कलिंग के राजा ने उनको दान दिए थे। तो रत्नगिरी भी उसी माफिक एक बड़ा विहार है जहाँ डायमंड बहुत ही हम देखते हैं, इंस्क्रिप्शन से बुद्ध रूप है, स्तूपा है, और इस सारा चीज़ों से देखने से पता चलता है कि रत्नगिरी भी एक बहुत बड़ा सेंटर्स था। तो रत्नगिरी इस ज्वेल माउंटेन, रत्न मीन ज्वेल। नाउ रत्न यहाँ कहने से बुद्ध रत्न, धम्म रत्न एंड संघ रत्न। तो रत्नगिरी को छोड़ के फिर उदयगिरी जब आता है, उदयगिरी जो है अराउंड 5th सेंचुरी 7th सेंचुरी के समय का है। तो उदयगिरी में बेसिकली जो है गुरु पद्मसंभव का जगह था, जहाँ उन्होंने तपस्या किए, वहाँ सिद्ध पाए, और अनेक गुरुओं इस जगह से उनकी साधना करके ज्ञान प्राप्ति हुआ है। तो वरिसा उदयगिरी का जो स्टेज इस बोलता है कि कॉन्फ्लुएंस है सारा अर्ली बुद्धिज़्म का, थेरवाद का, लेटर पीरियड में फिर महायान आ गए और वज्रयाना का उत्पत्ति हुआ। इस सारा का कॉन्फ्लुएंस जो है ओडिशा में दिखने को मिलता है। This is my third time in Odisha, but my second time in Udayagiri. So I was actually born Buddhist. My parents are Buddhist, so this is my religion from birth. So I can't say that I had an experience to bring me to Buddhism, but it's important philosophy because it's one of the few that provides a way for everyone to find a way out of suffering. That offers a solution to suffering, where most religions provide a solution only after death. Buddhism provides a solution while you're still alive to find a way out of suffering, and I feel this is very important. And so even I mean I could have changed my religion, but I stayed Buddhist because I find it useful in every day, every moment, how to deal with the difficulties that we face. This is the second time I came here in Lalitagiri, Ratnagiri, Udayagiri, and but this is the first time I follow this beautiful ceremony, Padmasambhava ceremony, and I follow Tantric Buddhism for many years, and I feel good to pray and chanting mantras, and feel peace to be in a very beautiful crowd all around me. I've been practicing his teachings for 25 years, and I'm very interested in his history and his teachings for life. I think it's a beautiful path or developing wisdom and compassion, and it brings meaning to life and to relationships between every human being and with in the world in this moment, which is there is a lot of suffering in this world now, so it's a way for wisdom and joy and peace. I'm practicing and studying Buddhism. There are 35 years, and it's a path of awakening compassion and wisdom, and a way for training minds. A big joy to be here and practicing and chanting with 2,000 practitioners. It's a very big joy for me. Realization, big realization for me. I'm very happy. तो स्ट्रिंगिन आप लद्दाख से हैं। हाँ जी सर। और हम लोग देख रहे हैं कि बुद्ध गया में भी हर वक्त आप आगे ही नजर आए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आगे ही नजर आए। तो ये सेवा देखिए जी कैसे महसूस हो रहा है? ये तो हमारा बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, अपने लिए नहीं भाई। जब अभी
टाइम है तो मैं कर रहा हूँ जितना हो सके अपना बुद्ध धर्म के लिए, अपना छोटा सा जितना हो सके अपना साइड से जो पॉसिबल है वो कर रहा हूँ। बाकी बहुत काम थकावट है, एट द एंड ऑफ द डे बहुत महसूस होता है सभी लोग को सब चीज़ टाइम पे मिल रहा है, हर चीज़ सही सलामत जा रहा है तो बहुत खुश होता है। हर साल लोग बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहा है, हर कोई एक दूसरे को बताते हैं प्रोग्राम के बारे में क्या है, कैसे चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हर साल नया एक्सपीरियंस भी मिलता है और लोगों से भी मिलता है, लोग बहुत खुश होके जाता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर। जब आपके पास टाइम है, अभी मैं थोड़ा यूथ में हूँ तो देना चाहिए जो मुझे लग रहा है। एक टाइम आएगा मैं भी बैठ के आराम से ध्यान करूँगा। सर आप लोग देख पाते हैं कि ये एक तरह का जो यूनिट है ये हर लद्दाखी के हाथ में दिखता है, क्या वजह है, इसे क्या कहते हैं? ये सर जी हाँ, हम इसको माने लखोर बोलते हैं। तो ये हम लोगों के बुढ़ा बुढ़ी जो भी मतलब बुद्धिस्ट लोग है इसको बहुत अच्छे मतलब मंत्र में होता है, इसको येगे टुकमा बोलता है। तो हम सारे बुढ़ा बुढ़ी जितने भी लोग हैं यही यूज़ करते हैं और मंत्र बोला जाता है। मंत्र बोला, कौन सा मंत्र होता है वो? ये होता है जी ओम माने पद्मी होम जी। हमारे धर्म में वो गुरु पद्म संभव जो है ना बहुत मतलब हम मानते हैं। तो ये गुरु जी का वो तो नेपाल में सबसे बहुत अच्छा उसका वो है मरुटिका, जैसे दुर्जे पद्मो ऐसे बहुत सारा है। और ये धर्मशाला में जैसे ये सोपद्मा में बहुत सारा उनका वो है, वो हमारा बहुत बड़े गुरु। मंडी से रेवा से हाँ वहाँ पहुँचा, वहाँ है उसका असली, वहाँ गुफा है, उसी में बैठा है गुफा, उसमें बहुत साल बैठा है। तो उसमें क्या क्या कोई मंडी वाला जो राजा था ना उसे वो उन्हें खींच के लाया गुफा से, खींच के दरिया में वो जो झील है उधर वो झील में जला दिया। फिर पासोंग बोलते हैं ना पासोंग, बाद में उसमें पैदा हो गया, फूल जैसा पैदा हो गया। तो उसमें कमल के फूल में, हाँ कमल का फूल में ऐसे फूल हो गया। तब उसको जो तेल डाला ना जलाने के लिए वो तेल पानी बन गया, वो जो लकड़ी जो कोला बन गया। उसमें अभी सिंग वाला एक कोला होता है ना वो कोला है, उसमें दरिया से निकलता है उसके झील से, वही है सर। अभी एक होना जिसे क्या होता है वो लकड़ी एक होता है ना जो सुरंग वाला, उसको जैसे हमारा अभी बजाता है ना इसका मंदिर में बजने वाला जो उसका वो पैप उसमें फूक मारने का वो बनता है, जलिंग बोलता है उसको, जलिंग जिसे लमाल ने बजाता है ना सर वही बनाता है सर। हाँ जी ये है सर हमारे सबसे असली मेन जगह इसका गुरु का वहाँ है रेवासर में। हाँ जी मैंने प्लान नहीं किया था, हम बोध गए हुए थे मम्मी के साथ, बट बाय चांस हमें ये पता चला कि गुरु का यहाँ सेरेमनी हो रहा है। तो उड़ीसा मेरे लिस्ट में था ज़िंदगी में, एक बार तो जाना था। तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ मिल गया आने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो भगवान ने मेरे ख्याल से गुरु रिम्पोचे ने बुलाया था। कभी कभी है ना स्प्रेड करने में हम लोग ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा प्रिजर्व करने में करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारे पास है टिबेटन कल्चर में संभावक के बाद में बहुत स्क्रिप्ट है, बहुत इतना है कि सबके लिए सफिशेंट है, सबके लिए हम दे सकते हैं, हम लोग शेयर कर सकते हैं ना। अभी जो है कि रिसर्च करना पड़ेगा पहले तो, और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडियन बुद्धिस्ट है ना उनको थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना होगा, उनको थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड होना होगा। क्योंकि अभी जो भी इनिशिएटिव है हिमालयन बुद्धिस्ट कर रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत 11 जनवरी को एक भव्य शांति मार्च से हुई। हजारों भिक्षु और उपासकों ने उदयगिरी की प्राचीन गुफाओं के बीच बुद्ध के वचनों का उद्घोषण किया। उद्घाटन भाषण में ओडिशा के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने कहा, यह सम्मेलन ओडिशा की बौद्ध विरासत को वैश्विक पटल पर लाने का अवसर है। डॉक्टर वांगमो डिक्सी ने स्वागत करते हुए कहा, गुरु पद्म संभव की शिक्षाएं आज की दुनिया में शांति और एकता का संदेश देती है। To welcome you all to Orissa for the second Guru Padma Sambhav ceremony. I extend my heartfelt greetings to the revered monks, scholars, practitioners and devotees who have traveled from across India and the world
to be part of these sacred gatherings. Your presence today strengthens the spiritual bridge between Orissa and the global Buddhist community. Orissa is not merely a land of temples and monuments. It is a pilgrim place and the birthplace of Guru Padmasambhava. Thank you for all of you who have come here today, for your curiosity, your devotion, and your readiness to walk alongside us in this sacred rediscovery. May the blessings of Guru Padmasambhava fill these days with clarity, courage, and compassion. With profound, deepest respect and warmest greetings. प्रथम दिन की मुख्य गतिविधियां थी वज्रयान पूजा, मंडल अर्पण, धूप और अग्नि अनुष्ठान, बटर लैम्प ऑफरिंग, टोरमा पूजा और लंबी आयु की प्रार्थनाएं। शाम को ओडिसी और तिब्बती नृत्य व संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जो विभिन्न संस्कृतियों की एकता को दर्शाते थे। गुरु पद्मसंभव की जीवन और विरासत चर्चा हुई उनकी जन्मभूमि उद्यान यानी कि ओडिशा से तिब्बत तक की यात्रा पर। गैत्रुल जिग्मे लोदोए रिनपोचे ने कहा, पद्मसंभव की शिक्षाएं भारत से निकली और तिब्बत में संरक्षित हुई। अब इन्हें भारत में लौटाना हमारा कर्तव्य है। वज्रयान बौद्ध धर्म और ओडिशा का योगदान। विद्वानों ने डायमंड ट्रायंगल के पुरातात्विक महत्व पर बात की। राहुल रवि राव मुंबई विश्वविद्यालय के पाली विभाग से है, जिन्होंने अपना पेपर भारत का सबसे अच्छा रखा रहस्य उद्यान के बौद्ध सांस्कृतिक स्थल का पुनरुत्थान ये प्रस्तुत किया। इसमें उद्यान की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही थेरवाद, महायान और वज्रयान की सह अस्तित्व पर भी। उन्होंने ओडिशा स्कूल ऑफ बौद्ध आर्ट और वोटिव स्तूपों के विकास पर प्रकाश डाला और इन स्थलों को बौद्ध सर्किट में शामिल करने की वकालत भी की। ये जो डायमंड ट्रायंगल है, इसका जो शब्द है डायमंड, हमें समझ में डायरेक्टली आता है कि ये वज्रयान का जो हम लोग थंडरबोल्ट कहते हैं, डायमंड कहते हैं। जो रत्न है, तीन रत्न भी बुद्ध धम्म से मिलता है, बुद्ध धम्म संघ से मिलता है। और ये जो डायमंड ट्रायंगल की जो हम बात कर रहे हैं ओडिशा की, जो ओडिशा में जो रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, सो ये जो ऐसे जगह ठिकान थे जहाँ महाविहार आते उस समय के, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, उदनपुरी, हमें समझ में आता है। तो ये जो महाविहार थे, ये महाविहार में किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली थी, जो भिक्खु के लिए है, भिक्खुनी के लिए है, उपासक उपासिका। तो ऐसे केंद्र बिंदु को एक तरीके से डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है, जहाँ पे तीन जो इम्पोर्टेंट बौद्ध स्थल होते हैं, जहाँ तीनों मिलते हैं, तो उसको डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। जब हम पाली साहित्य में पढ़ते हैं, जो कि महापरिनिर्वाण सूत्र में, जहाँ बुद्ध ने डायरेक्टली कहा है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मुझे ध्यान प्राप्त हुआ है, जहाँ मैं धम्म दिया है, जहाँ पे मेरे महापरिनिर्वाण हुआ है, तो उसका हमें रेफरेंस जहाँ डायरेक्टली मिलता है। पर हमें समझना चाहिए ये जो ठिकान है वो कलिंग से था उसमें, जिस समय पे सम्राट अशोक ने अपने धम्म के जो धम्मदूत या मिशनरीज स्प्रेड किए। तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट हुआ, ये कि इसका जो डेवलपमेंट हमें मिलता है फर्स्ट BCE से, बौद्ध काल के फर्स्ट सेंचुरी से मिलता है, जो कि हमें डायरेक्टली 11th सेंचुरी तक मिल जाता है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 1200 साल तक का जो धम्म हमें इस साहित्य का जो जानकारी हमें आर्किटेक्चर के द्वारा, जो कि स्तूपा है, चैत्यगृह है, विहारा है, स्कल्पचर्स है, और ये जो ठिकान है इसके डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि इसका रेफरेंस हमें डायरेक्ट पाली में नहीं मिलता है, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुआ है। जिस समय पे जो महायान जो स्कूल है,
जो हम कहते हैं महासंघ कहते हैं, महासंघिका कहते हैं, तो महान स्कूल है। उसके बाद जो वज्रायना स्कूल है जिसमें हमें अलग अलग उनके गेट पे स्कूल मिलते हैं, निगमा है, शाक्या है, ये इनका जो इन्फ्लुएंस सेंटर था। तो इसका डेवलपमेंट बाद में हुआ है, इसकी हमें जानकारी डायरेक्टली पाली में नहीं मिलती है, बट बाकी जो संस्कृत टेक्स्ट है या फिर जो टिबेटन व्यापारी है, टिबेटन पिलग्रिमेज, उनकी जानकारी में द्वारा ये मिलती है। सर एलेक्जेंडर कनिंगहैम है, जॉन मार्शल है, जेम बर्जेस है, बुचानान है, ये लोग ने जो फाइंड आउट किया है एक्सकर्शन के बारे में, वो उन्होंने उनकी किताब से फाइंड की है, जो कि हम ह्यूमन संकेत डायरी से CU की से, तो उसमें उन्होंने जो मेन बौद्ध स्थल है जो कि यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार है या नेपाल का जो परिसर है, तो क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली हमें बड़े नंबर पे मिलते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी बुद्ध वहाँ पे मज्जी मदेसा। बौद्ध धरोहर का संरक्षण और आधुनिक प्रासंगिकता। डॉक्टर फ्रेडरिक मोरानवाल, लामा तेंजिन सम्पेल और खिनपो चोयपेल नोरबू, इन जैसे वक्ताओं ने भारत की बौद्ध साइट्स के संरक्षण, सस्टेनेबल टूरिज्म और वैश्विक शांति पर चर्चा की। गेपा दोरजे रिनपोचे और गुरुजी जिग्मे रिनपोचे ने पद्म संभव की शिक्षाओं को समकालीन चुनौतियों से जोड़ा। वैश्विक शांति और एकता। इस सम्मेलन में जाति, पंथ, संस्कृति और धर्म की सीमाओं से परे एकता पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं की। सभी सत्रों में प्रश्नोत्तर के दौर भी हुए और योगदानकर्ताओं को बुद्ध प्रतिमाएं भेंट दी गई। शाम के कार्यक्रमों में तिब्बती संगीत और ओडिसी नृत्य ने माहौल को जीवंत बनाया। 야네 상마초 동고르나라 지도세 예네나라 송도세 예네나라 지도세 나야의 회진이 야치다 나야의 죄진이 마치다 강배의 고독 라배의 도착 르지냐요 nga tsiri la do tsiri nga chari la do chari che phu sum so pe re ma ya mo che tho shwa mo re re sa ma cho सम्मेलन के हाइलाइट्स में शामिल थे पवित्र चैंटिंग, पूजाएं और अनुष्ठान जो उदयगिरी को एक जीवंत पवित्र स्थल में बदल गए। ये आयोजन न केवल अकादमिक था बल्कि आध्यात्मिक भी, जहां उपासकों ने विश्व शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरण के लिए प्रार्थना की। निंगमा भिक्षुओं और रिनपोचे ने संदेश दिया कि पद्म संभव की शिक्षाएं भारत से है
और इन्हें यहां संरक्षित किया जाना चाहिए। समापन 16 जनवरी को हुआ, जहां प्रतिभागियों ने सामूहिक प्रार्थना के साथ वैश्विक स्पष्टता और निर्भयता की कामना की। यह सम्मेलन सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण बना और ओडिशा की बौद्ध धरोहर को वैश्विक मान्यता दिलाई। गुरु पद्म संभव की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। ये शिक्षाएं हमें करुणा, ज्ञान और एकता सिखाती है। यह सम्मेलन एक शुरुआत है जो भविष्य में ऐसे और आयोजनों को प्रेरित करेगा।